नमस्कार दोस्तों। आज हम द वंडर दैट वाज इंडिया इस चैप्टर को सिंपल हिंदी में समझेंगे और साथ ही एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ द वर्क। द वंडर दैट वाज इंडिया बाय आर्थर लेवेलिन बशम इज अ सिग्निफिकेंट वर्क दैट प्रेजेंट्स a comprehensive view of ancient Indian civilization. The book was written to introduce both Indian and Western readers to the richness of India's past. Basham aimed to simplify complex historical and cultural ideas so that they could be easily understood by common readers without losing their depth. The purpose of this work is not only to describe historical events but also to highlight the cultural, spiritual, and intellectual achievements of India. Basham presents India as a civilization that developed unique values and contributed significantly to world heritage. At the same time, he maintains a balanced approach by also pointing out certain social limitations. यह पुस्तक भारत की प्राचीन सभ्यता का एक व्यापक और विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है। इसे भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार के पाठकों को भारत के समृद्ध अतीत से परिचित कराने के उद्देश्य से लिखा गया है। बश्म का लक्ष्य था कि वे जटिल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विचारों को इस प्रकार सरल बनाएं कि सामान्य पाठक भी उन्हें आसानी से समझ सके, लेकिन उनकी गहराई और मूल अर्थ बना रहे। इस कृति का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों को उजागर करना भी है। बश्म भारत को एक ऐसी सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसने विशिष्ट मूल्यों का विकास किया है और विश्व धरोहर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही वे संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए समाज की कुछ सीमाओं और कमियों को भी उजागर करते हैं। यह एक पूरी बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया नाम से, जिसे लिखा है ए एल बस्म ने। इसमें भारत की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के बारे में बताया गया है। Continuity of Indian civilization. One of the central idea in Bashma work is the continuity of Indian civilization. Unlike many ancient civilizations that declined or disappeared, Indian civilization has survived for thousands of years. This continuity is rooted in strong tradition, religious beliefs, and philosophical ideas that have been passed from generation to generation. Bashma explains that even with foreign invasions and social changes, India retained its core identity. Texts like the Bhagavad Gita and the Upanishad continued to guide people's thoughts and actions. This ability to adapt while preserving tradition is the main reason behind India's long lasting cultural stability. भस्म की इस कृति का एक प्रमुख विचार भारतीय सभ्यता की निरंतरता है। कई प्राचीन सभ्यताओं के विपरीत जो समय के साथ नष्ट हो गईं या समाप्त हो गईं, भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों तक निरंतर बनी रही। यह निरंतरता मजबूत परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और दार्शनिक विचारों पर आधारित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे हैं। भस्म बताते हैं कि विदेशी आक्रमणों और सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद भारत ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखा। भगवद गीता और उपनिषद जैसे ग्रंथ लगातार लोगों के विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करते रहे। परंपराओं को बनाए रखते हुए समय के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की यह क्षमता ही भारतीय संस्कृति की दीर्घकालिक स्थिरता का प्रमुख कारण है। Spread of Indian culture in Southeast Asia. Bashma highlighted that Indian culture spread widely across Southeast Asia through peaceful means such as trade, migration, and religion. Countries like Cambodia, Indonesia, Thailand, and Vietnam adopted Indian ideas, customs, and traditions without any force or conquest. Indian epics like the Ramayana and Mahabharata were adapted into local cultures and became part of their literature and performing art. Architectural wonders such as Angkor Wat and Borobudur reflect strong Indian influence. This shows that India played the role of a cultural guide, spreading knowledge and values through interaction rather than domination.
भस्म इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार, प्रवासन और धर्म जैसी शांतिपूर्ण माध्यमों से व्यापक रूप से फैली। कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों ने बिना किसी युद्ध या बल प्रयोग के भारतीय विचारों, परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाया है। रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों को स्थानीय संस्कृतियों में ढाल लिया गया है और वे वहाँ के साहित्य तथा नृत्य नाटक जैसी कलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अंगकोर वाट और बोरोबुदुर जैसे भव्य स्थापत्य भारतीय प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत ने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बजाय सांस्कृतिक मार्गदर्शन की भूमिका निभाई है। Influence on other Asian region. Indian cultural influence was not limited to Southeast Asia but also reached China, Japan, Korea, and Tibet. Buddhism played a major role in this expansion, carrying Indian philosophy, art, and traditions across borders. In these regions, Indian ideas blended with local traditions and created new cultural forms. Sanskrit influenced many languages, and Indian religious and philosophical concepts shaped their way of life. This widespread influence proves that India had a strong intellectual and spiritual presence across Asia. भारतीय संस्कृति का प्रभाव केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों तक भी पहुंचा। इस विस्तार में बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने भारतीय दर्शन, कला और परंपरा को सीमाओं के पार पहुंचाया। इन क्षेत्रों में भारतीय विचार स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर नए सांस्कृतिक रूपों का निर्माण करते हैं। संस्कृत भाषा का प्रभाव अनेक भाषाओं पर पड़ा और भारतीय धार्मिक तथा दार्शनिक अवधारणाओं ने वहाँ के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यह व्यापक प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक उपस्थिति पूरे एशिया में थी। India's contributions to the world. Bhashma emphasizes that India made both practical and intellectual contributions to the world. On the practical side, India introduced products like rice, cotton, sugarcane, spices, and even games like chess. These contributions improved daily life across different regions. On the intellectual side, India contributed ideas such as the decimal system and the concept of zero, which revolutionized mathematics. More importantly, India gave philosophical concepts like unity of existence and non-violence, which influenced global thinking and human values. भस्म इस बात पर जोर देते हैं कि भारत ने विश्व को व्यवहारिक और बौद्धिक दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। व्यवहारिक रूप से भारत ने चावल, कपास, गन्ना, मसाले और शतरंज जैसे खेलों का परिचय दुनिया को दिया, जिसने विभिन्न क्षेत्रों के दैनिक जीवन में सुधार किया है। बौद्धिक रूप से भारत ने दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा जैसी महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने अस्तित्व की एकता और अहिंसा जैसे दार्शनिक विचार दिए हैं, जिन्होंने विश्व के चिंतन और मानवीय मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया है। Influence on Western thoughts. Although direct contact between ancient India and the West is debated, Bhashma pointed out that Indian ideas eventually influenced Western philosophy and literature. During later centuries, Indian texts were translated into European languages, which introduced Western scholars to Indian thought. Thinkers like Schopenhauer and Emerson were deeply influenced by Indian philosophy, especially concepts from the Upanishad and Buddhism. This shows that India's intellectual contributions were not limited to Asia but reached the Western world as well. हालांकि प्राचीन भारत और पश्चिम के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को लेकर मतभेद है, फिर भी भस्म यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय विचार अंततः पश्चिमी दर्शन और साहित्य को प्रभावित करने लगे हैं। बाद के समय में भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया,
जिससे पश्चिमी विद्वानों को भारतीय विचारों से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। शोपेनहावर और इमर्सन जैसे विचारक भारतीय दर्शन से गहराई से प्रभावित हुए, विशेष रूप से उपनिषदों और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से। यह दर्शाता है कि भारत के बौद्धिक योगदान केवल एशिया तक नहीं है, बल्कि भारत के इस बौद्धिक योगदान ने पश्चिमी विश्व को भी प्रभावित किया है। एक्सप्लेनेशन को बीच में रोकते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अन्य फाउंडेशन कोर्सेज के वीडियोस को मिस ना करें। साथ ही वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। Religion and spiritual depth. Religion played a central role in shaping Indian civilization. Bhashma explains that Indian religions like Hinduism and Buddhism were not rigid systems, but flexible and evolving traditions. They focused on spiritual growth, moral values, and the search for truth rather than strict dogma. Concepts like dharma, karma, and moksha guided people's lives and gave meaning to human existence. Religion in India was deeply connected with daily life, influencing art, literature, and social behavior. This spiritual depth made Indian culture unique and enduring. धर्म भारतीय सभ्यता के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भस्म बताते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे भारतीय धर्म कठोर और स्थिर व्यवस्था नहीं थे, बल्कि लचीले और विकसित होने वाले परंपरागत तंत्र थे। इनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास, नैतिक मूल्यों और सत्य की खोज पर आधारित था, न कि केवल नियमों और कठोर मान्यताओं पर। धर्म, कर्म और मोक्ष जैसी अवधारणाएं मानव जीवन को दिशा देती थी और जीवन के अर्थ को स्पष्ट करती थी। भारत में धर्म केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह दैनिक जीवन, कला, साहित्य और सामाजिक व्यवहार से गहराई से जुड़ा हुआ था। यही आध्यात्मिक गहराई भारतीय संस्कृति को विशिष्ट और स्थायी बनाती है। सोशल स्ट्रक्चर एंड इट्स चैलेंजेस. Bhashma presents a balanced view of Indian society by discussing both its strengths and weaknesses. He explains that the caste system provided social organizations and stability, but over time it became rigid and restrictive. While it initially helped in maintaining order, it later created inequalities and social divisions. Bhashma also points out practices like child marriage and sati, which reflected certain social limitations. Despite these issues, Indian society continued to evolve and reform itself over time. भस्म भारतीय समाज का संतुलित चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे उसकी शक्तियों और कमजोरियों दोनों की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था ने समाज को एक संरचना और स्थिरता प्रदान की थी, लेकिन समय के साथ यह कठोर और प्रतिबंधात्मक बन गई। प्रारंभ में यह व्यवस्था भारतीय समाज के संतुलन को बनाए रखने में सहायक थी, लेकिन बाद में इसने असमानता और विभाजन को जन्म दे दिया। भस्म बाल विवाह और सती जैसी प्रथाओं का भी उल्लेख करते हैं, जो सामाजिक सीमाओं को दर्शाती हैं। फिर भी इन समस्याओं के बावजूद भारतीय समाज समय के साथ स्वयं को सुधारता और विकसित करता रहा है। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. Indian civilization made remarkable contributions in the field of art, architecture, and literature. Bhashma highlights the richness of Indian temples, sculptures, paintings, and monuments that reflects both religious devotion and artistic excellence. Literary work like the Ramayana and Mahabharata are not just stories but carrying deep moral and philosophical meanings. Sanskrit literature, poetry, and drama also played a significant role in shaping Indian culture. These artistic and literary achievements reflects the creativity and intellectual depth of ancient India. भारतीय सभ्यता ने कला, वस्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भस्म भारतीय मंदिरों, मूर्तियों, चित्रकला और स्थापत्य कला की समृद्धि को उजागर करती हैं, जो धार्मिक आस्था और कलात्मक उत्कृष्टता दोनों को दर्शाती हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे नैतिक और दार्शनिक संदेश निहित हैं। संस्कृत साहित्य, कविता और नाटक ने भी भारतीय संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सभी उपलब्धियां प्राचीन भारत की रचनात्मकता और भौतिक गहराई को दर्शाती हैं।
Political and administrative systems. Political and administrative systems. Bhashma also discusses the political structure of ancient India. He explains that Indian rulers followed the concept of dharma while governing their kingdoms. Kings were expected to act as protectors of their people and maintain justice. Administrative systems were well developed with organized taxation, law, and governance. Although there were variations across regions, the general idea of ethical and responsible leadership remained strong. This shows that political life in India was guided by moral principles. भस्म प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था का भी वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भारतीय शासक अपने राज्य का संचालन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर करते थे। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और न्याय स्थापित करे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित थी, जिनमें कर प्रणाली, कानून और शासन की स्पष्ट व्यवस्था थी। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ विभिन्नताएं थीं, लेकिन नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व की भावना प्रमुख रही। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का राजनीतिक जीवन नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था। इसमें मुख्य रूप से मुगल काल के पहले के भारत की चर्चा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध राजा होते थे। इनका प्रमुख रूप से नैतिक सिद्धांतों पर चलने का विचार होता था और समाज में इनके ऊपर दायित्व होता था कि ये जनता की रक्षा करेंगे और हमेशा अच्छे काम ही करेंगे। ये जनता के रक्षक माने जाते थे। Education and intellectual life. Education in ancient India was highly developed and respected. Basham mentions famous center of learning like Nalanda and Takshila, where students from different parts of the world came to study. Subjects like philosophy, science, mathematics, medicine, and literature were taught with great depth. Teachers and scholars were highly respected in society. This strong intellectual tradition helped India become a center of knowledge and learning. प्राचीन भारत में शिक्षा अत्यंत विकसित और सम्मानित थी। भस्म, नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों का भी उल्लेख करते हैं, जहां विश्व के विभिन्न भागों से छात्र अध्ययन करने आते थे। यहाँ दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और साहित्य जैसे विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता था। शिक्षक और विद्वान समाज में अत्यंत सम्मानित थे। यह मजबूत बौद्धिक परंपरा भारत को ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बनाती है। Conclusion and overall evaluation. In conclusion, Bhashma presents India as a civilization rich in culture, spirituality, and intellectual achievements. Despite certain social weaknesses, its contributions to the world are immense and lasting. He emphasizes that India's true strength lies in its ability to adapt, absorb, and evolve, while preserving its core values. Indian culture, according to Bhashma, is not only important for India but is a valuable part of the shared heritage of humanity. अंत में भस्म भारत को एक ऐसी सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। कुछ सामाजिक कमजोरियों के बावजूद इसके विश्व को दिए गए योगदान अत्यंत व्यापक और स्थायी है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी अनुकूलन क्षमता, आत्मसात करने की क्षमता और विकासशील प्रकृति में निहित है, जबकि वह अपने मूल्यों को बनाए रखता है। भस्म के अनुसार भारतीय संस्कृति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता की साझा धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अब राइटर ए.एल. भस्म पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इनसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज बन जाते हैं। 1. Arthur Llewellyn Basham was born on 24 May 1914 in England. आर्थर ल्यूलेन बश्म का जन्म 24 मई 1914 को इंग्लैंड में हुआ था। He was a British historian and Indologist. वे एक ब्रिटिश इतिहासकार और भारतीय अध्ययन के विद्वान थे। He is best known for his famous book The Wonder That Was India. वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The Wonder That Was India के लिए जाने जाते हैं।
This book was first published in the year 1954. यह पुस्तक पहली बार वर्ष 1954 में प्रकाशित हुई थी। His work mainly focuses on pre-Islamic Indian civilization. उनका कार्य मुख्य रूप से इस्लाम पूर्व भारतीय सभ्यता पर केंद्रित है, यानी उन्होंने भारतीय सभ्यता के उस समय का अध्ययन किया है जब भारत में इस्लाम नहीं आया था। He served as a professor at the School of Oriental and African Studies, University of London. उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। He also taught at the Australian National University. उन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में भी अध्यापन का कार्य किया है, यानी पढ़ाया है। भस्म was a mentor to the renowned historian रोमिला थापर. भस्म प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर के मार्गदर्शक रहे हैं। His writings presents India as a culturally and spiritually rich civilization. उनकी रचनाएं भारत को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करती है। He studied various aspects of India, including religion, society and philosophy. उन्होंने भारत के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, समाज और दर्शन का अध्ययन किया है। He emphasized the continuity of Indian civilization over thousands of years. उन्होंने हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीय सभ्यता की निरंतरता पर जोर दिया है। He highlighted India's influence on Southeast Asian countries. उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भारत के प्रभाव को उजागर किया है। He explained the peaceful spread of Indian culture through trade and religion. उन्होंने व्यापार और धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति के शांतिपूर्ण प्रसार को समझाया है। He acknowledged both strength and weaknesses of Indian society in his work. उन्होंने अपने कार्य में भारतीय समाज की खूबियों और खामियों, यानी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को स्वीकार किया है। He contributed to making Indian history understandable to Western readers. उन्होंने भारतीय इतिहास को पश्चिमी पाठकों के लिए समझने योग्य बनाया है। His writing style is simple, clear and analytic. उनकी लेखन शैली सरल, स्पष्ट और विश्लेषणात्मक है। He focused on unity in diversity as a key feature of Indian culture. उन्होंने विविधता में एकता को भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता बताया है। He recognized India's contributions in science, mathematics and culture. उन्होंने विज्ञान, गणित और संस्कृति में भारत के योगदान को स्वीकार किया है। He is considered one of the most respected Western scholars of Indian civilizations. उन्हें भारतीय सभ्यता के सबसे सम्मानित पश्चिमी विद्वानों में से एक माना जाता है। Arthur Llewellyn Basham died on 27 January 1986. आर्थर ल्यूवेलन बश्म का निधन 27 जनवरी 1986 को हुआ था। इस तरह से हमने इन पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन 1, हाउ डिड महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस इंडियाज इमेज इन द वर्ल्ड एंड व्हाई आर हिज आइडियाज इंपॉर्टेंट बियॉन्ड इंडिया? महात्मा गांधी ने भारत की छवि को कैसे बदला, जैसे पूरे विश्व में भारत की एक अच्छी छवि इमेज कैसे बनाई? India's image changed. According to A.L. Basham, Mahatma Gandhi transformed India's image into a nation of peace and moral strength. His principles of ahimsa, non-violence, and satyagrah, truth force, made India's freedom struggle unique. Instead of violence, he chose truth and justice, which gave India a powerful moral identity in the world. Global importance of Gandhi. Gandhi's idea went far beyond India. Leaders like Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela followed his methods. He proved that conflicts can be solved without violence. Because of this, Gandhi became a global symbol of peace, truth and moral courage. मुख्य रूप से गांधी जी ने भारत के इतिहास में अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से एक अलग जगह बनाई है। भारत के बाहर भी लोग जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जी ने गांधी जी के ही रास्तों को फॉलो करके कई क्रांतिकारी काम किए हैं। इसलिए भारत की एक अलग छवि बनी।
भारत जब आज़ाद हुआ तो केवल हिंसा से नहीं हुआ, बल्कि अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर भी आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन 2, हाउ डिड इंडियन फिलोसफी इन्फ्लुएंस वेस्टर्न थिंकर्स एंड व्हाट डज भस्म से अबाउट इंडियाज इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड? Impact on Western thinkers. Bhashma explains that Indian philosophy deeply influenced Western thinkers. Philosophers like Schopenhauer were inspired by texts such as the Upanishads, which explore reality and existence. Ideas like unity of existence and non-violence added new depth to Western philosophy. India's intellectual power. According to Bhashma, India's greatest contributions are intellectual and spiritual concepts like yoga, meditation, and moral living helped people worldwide, along with practical contributions like the decimal system. India mainly influenced the world through his deep philosophical thinking. Question 3, how has Indian civilization remained continuous over time? भारतीय सभ्यता लगातार निरंतर कैसे बनी रही? भारत पर इतने आक्रमण हुए, इतने बार भारत को हमला करके कब्जे में करने की कोशिश हुई, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, फिर भी भारत की सभ्यता बदली क्यों नहीं, चलती क्यों रही? Power of continuity. Bhashma says Indian civilization survived because it adapted without losing its core value. Even after many changes, India maintained its cultural identity by accepting new ideas while preserving traditions. Role of sacred texts. Texts like the Vedas, Upanishads, Ramayana, and Mahabharats guided people across generations. They taught values like truth, duty, and righteousness. This strong cultural base helped Indian civilization continue for thousands of years. भारतीय सभ्यता इसलिए निरंतर बनी रही क्योंकि भारतीय सभ्यता ने समय के साथ अपने आप में परिवर्तन किया। साथ ही भारत के उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत, इन सभी रिलीजियस टेक्स्ट यानी धार्मिक ग्रंथों ने भारत के लोगों को रास्ता दिखाया। क्वेश्चन 4, व्हाट रोल डू द वेदास एंड उपनिषद्स प्ले इन इंडियन कल्चर? भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में वेद और उपनिषद क्या भूमिका निभाते हैं? आंसर, foundation of Indian thought. The Vedas and Upanishads form the foundation of Indian culture. Bhasma explains that the Veda focus on duties and proper living, while the Upanishads explore deeper ideas about the soul and reality. वेद और उपनिषद भारतीय संस्कृति समाज का आधार बनाते हैं। वेद मुख्य रूप से लोगों के कर्तव्यों और उनकी डेली लाइफ यानी दिनचर्या पर और रहन सहन पर ध्यान देते हैं, जबकि उपनिषद गहरी बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, वास्तविकता, इन तथ्यों पर उपनिषद ध्यान देते हैं। गाइडिंग लाइफ एंड थिंकिंग. These texts encourage people to think, question, and seek truth instead of blindly following traditions. Their teachings influence religion, literature, and daily life, even today. That is why they remain a strong source of moral and spiritual guidance. यह धार्मिक ग्रंथ लोगों को सोचने, प्रश्न पूछने और सत्य को समझने के लिए इनकरेज करते हैं, न कि केवल धार्मिक मान्यताओं को आंख बंद करके विश्वास करने के लिए कहते हैं। यह आज भी लोगों के लिए स्पिरिचुअल रूप से और नैतिक रूप से काम आते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ डिड इंडियन कल्चर स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया इन अ पीसफुल वे? भारत की संस्कृति साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी देशों में, दक्षिण पूर्वी एशिया में शांतिपूर्ण तरीके से कैसे फैली? दक्षिण पूर्व में कुछ देश हैं जैसे कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। Peaceful culture spread. According to Bashma, Indian culture spread to Southeast Asia mainly through trade, migration, and religion, not through military conquest. Merchant, scholars, and monks carried Indian ideas, customs, and beliefs to regions like Cambodia, Indonesia, Thailand, and Vietnam. वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड ऐसे क्षेत्रों में भारतीय की संस्कृति व्यापार और माइग्रेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का चले जाना या बस जाना, इसके माध्यम से फैली है, किसी युद्ध के माध्यम से नहीं। व्यापारियों ने, दार्शनिकों ने और ऋषि मुनियों ने इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के आइडियाज को फैलाया था। कल्चरल इन्फ्लुएंस अब्रॉड. लोकल पीपल अडॉप्टेड इंडियन ट्रेडिशंस willingly.
Epics like Ramayana and Mahabharata became part of their literature, and temples like Angkor Wat reflects strong Indian influence. These shows that India acted as a cultural guide, spreading knowledge through interaction and not dominance. Question 6. What examples show the influence of Indian culture in foreign countries? Literature and religion. Bhashma points out that Indian epics like the Ramayana and Mahabharata were adopted and adapted in many Southeast Asian countries. Indian religious ideas, especially from Hinduism and Buddhism, also became part of their belief systems. Art and architecture. Architectural structures such as Angkor Wat and in Cambodia and Borobudur in Indonesia clearly show India's influence. In addition, Sanskrit words and scripts influenced many local languages. These examples prove the deep and lasting impact of Indian culture abroad. भस्म बताते हैं कि भारत के धार्मिक ग्रंथों और भारत के धार्मिक क्रियाकलापों को कई साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपनाया गया है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम इत्यादि देशों के आप नाम लिख सकते हो। इसमें रामायण महाभारत को अडॉप्ट किया गया और अडेप्ट किया गया, उसमें कुछ परिवर्तनों के साथ वे लोग इन्हें अपने धर्म का भी पार्ट मानते हैं। साथ ही कई देशों जैसे इंडोनेशिया में बोरोबुदुर की संरचनाएं मिलती हैं, कंबोडिया में अंगकूर वाट जैसे टेम्पल्स मिलते हैं जो भारत के इन्फ्लुएंस को दर्शाते हैं। क्वेश्चन 7. हाउ डज इंडियन कल्चर बैलेंस ट्रेडिशन एंड मॉडर्न चेंजेस? भारत की इस कल्चर ने, संस्कृति ने या समाज ने पुराने परंपराओं और मॉडर्न चेंजेस, आधुनिक परिवर्तनों को एक साथ कैसे अपनाया है, कैसे बैलेंस किया है? भारत अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर भी चल रहा है और आने वाले मॉडर्न चेंजेस, टेक्नोलॉजी को भी अपनाता है। कैसे? Adaptation with continuity. Bhashma explains that Indian culture has always adapted to new situations while preserving its core values. It accepted foreign influences and ideas but did not lose its traditional identity. Flexible traditions. Indian traditions are not rigid, they allow change and development. This flexibility helped society grow with time while maintaining its root. As a result, India remains connected to its past while moving forward in the present. भारत ने अपनी पुरानी परंपराओं को बचाते हुए नए मॉडर्न आइडियाज़ को भी अपनाया है। भारत में जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, बहुत ज़्यादा जटिल और रूढ़िवादी नहीं है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, इसलिए वह आधुनिकता को भी अपनाते हैं। क्वेश्चन 8. Why are Indian values considered universal according to Bhashma? Universal idea. According to Basham, Indian value like non-violence, tolerance, and spiritual harmony are not limited to India. These ideas address common human problems and can be applied anywhere in the world. भारत की संस्कृति में जो गुण हैं, जैसे अहिंसा, सहिष्णुता, टॉलरेंस, टॉलरेंस का अर्थ होता है सहना, और स्पिरिचुअल हार्मोनी, आध्यात्मिकता, यह सिर्फ भारत की संस्कृति के गुण नहीं है, यह किसी भी इंसान की समस्या को दूर करने के लिए परफेक्ट हैं। इन्हें विश्व के किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। ग्लोबल रेलेवेंस. Practices like yoga and meditation are followed worldwide today. These values promote peace, balance, and moral living. That is why Indian culture is considered a universal heritage for all human. भारत की संस्कृति के कुछ तत्व जैसे योगा, मेडिटेशन यानी योग और ध्यान विश्व के अलग अलग हिस्सों में फॉलो किए जाते हैं। इस कारण भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व के लिए यूनिवर्सल हेरिटेज, धरोहर के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। क्वेश्चन 1. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द वंडर दैट वाज इंडिया? द वंडर दैट वाज इंडिया, इस चैप्टर की मुख्य थीम क्या है? आंसर होगा बी नंबर, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर। क्वेश्चन 2. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आंसर होगा सी नंबर, कंटिन्यूटी, निरंतरता। 3. इंडियन कल्चर स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू, भारतीय कल्चर या भारतीय संस्कृति
साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में किस माध्यम से फैला? आंसर होगा बी नंबर ट्रेड एंड रिलीजन, व्यापार और धर्म के माध्यम से। क्वेश्चन 4, विच टेक्स्ट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन सिविलाइजेशन मोस्ट? कौन से ग्रंथ ने या कौन सी बुक ने भारतीय संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है? आंसर होगा सी नंबर वेदास एंड उपनिषद, वेदों और उपनिषदों ने। क्वेश्चन 5, इंडियन फिलोसफी इज मेनली, भारतीय दर्शन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? बी नंबर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। क्वेश्चन 6, विच कॉन्सेप्ट इंडिया गेव टू मैथमेटिक्स? गणित में भारत ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर जीरो एंड डेसिमल, शून्य और दशमलव। क्वेश्चन 7, इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड साउथ ईस्ट एशिया इन, भारतीय संस्कृति ने दक्षिण पूर्वी देशों की को किस एस्पेक्ट में, किस रूप में प्रभावित किया है? आंसर होगा सी नंबर आर्ट, रिलीजन, लिटरेचर। क्वेश्चन 8, विच मॉन्यूमेंट शोज इंडियन इन्फ्लुएंस अब्रॉड? कौन सा ऐसा स्मारक है जिसने भारतीय इन्फ्लुएंस को विदेशों में दर्शाया है या इस चीज का वह सबूत है? तो बी नंबर अंगकूर वाट, ये कंबोडिया में है। क्वेश्चन 9, इंडियन वैल्यूज आर कंसीडर्ड, इंडियन वैल्यूज यानी भारतीय वैल्यूज का अर्थ यहाँ पे होगा मूल्य, इन्हें किस तरह देखा जाता है? आंसर होगा सी नंबर यूनिवर्सल, वैश्विक स्तर पर देखा जाता है। जो नैतिकता और अच्छे मूल्य भारतीय संस्कृति में है वह पूरे विश्व में लागू होने चाहिए, जैसे अहिंसा। क्वेश्चन 10, बुद्धिज्म हेल्प्ड इंडिया, बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म ने इंडिया को किस चीज में मदद की है? आंसर है बी नंबर स्प्रेडिंग आइडियाज, भारत के विचारों को बाहर विस्तार करने में, प्रचार करने में। क्वेश्चन 11, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स, क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर स्पिरिचुअल वंसनेस, यानी आध्यात्मिक रूप से सभी एक ही हैं। क्वेश्चन 12, इंडियन सिविलाइजेशन सर्वाइव्ड बिकॉज इट, भारतीय सभ्यता इतने लंबे समय तक सर्वाइव कैसे कर पाई, कैसे अभी भी यह सभ्यता जीवित है? आंसर होगा बी नंबर अडेप्टेड, इसने समय के साथ कई मॉडर्न चीज़ों को अपनाया है, इसलिए यह आज भी जीवित है। क्वेश्चन 13, इंडियन कल्चर इज, भारतीय संस्कृति है। बी नंबर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी लचीली है, बहुत रूढ़िवादी, कट्टर नहीं है। क्वेश्चन 14, इंडियाज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज, भारत का सबसे बड़ा योगदान क्या है? आंसर होगा सी नंबर स्पिरिचुअल आइडियाज, आध्यात्मिक आइडियाज। क्वेश्चन 15, विच इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड टुडे, किस चीज को विश्व भर में आज फॉलो किया जाता है? आंसर है बी नंबर योगा, योग। क्वेश्चन 16, इंडियन सोसाइटी हैज, इंडियन सोसाइटी में मुख्य रूप से है ओनली स्ट्रेंथ, ओनली वीकनेसेस, केवल अच्छाइयाँ, केवल बुराइयाँ। तो आंसर होगा सी नंबर बोथ, दोनों है। क्वेश्चन 17, द वंडर दैट वाज इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, यह पुस्तक कब पब्लिश की गई थी? आंसर होगा सी नंबर 1954 में। 18, द बुक मेनली डील विथ, इस बुक में मुख्य रूप से किस समय की चर्चा है? आंसर होगा सी नंबर प्री इस्लामिक इंडिया, इस्लाम के विस्तार से पहले के भारत की चर्चा है। क्वेश्चन 19, हु रोट द वंडर दैट वाज इंडिया, इस बुक को किसने लिखा है? आंसर है बी नंबर ए एल भस्म, आर्थर लेवलिन भस्म। क्वेश्चन 20, ए एल भस्म वाज अ, ए एल भस्म कौन थे? आंसर है सी नंबर हिस्टोरियन, इतिहासकार थे। क्वेश्चन 21, भस्म टॉट एट, भस्म ने कहाँ पे अध्यापन का कार्य किया है, किस जगह पे पढ़ाया है? आंसर है बी नंबर SOAS लंदन। क्वेश्चन 22, भस्म प्रेजेंटेड इंडिया एज, भस्म ने इंडिया को किस रूप में प्रस्तुत किया है? सी नंबर स्पिरिचुअली रिच, आध्यात्मिक रूप से रिच। क्वेश्चन 23, भस्म स्टडीड, भस्म ने किस चीज पर अध्ययन किया है, क्या पढ़ा है उन्होंने? आंसर होगा सी नंबर इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास पढ़ा है। क्वेश्चन 24, भस्म ऑल्सो वर्कड एट, भस्म ने और कहाँ पर कार्य किया है? आंसर होगा बी नंबर ANU, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, ANU। 25, भस्म इज नोन फॉर, भस्म किस लिए जाने जाते हैं? आंसर है सी नंबर इंडियन कल्चर स्टडीज, भारतीय संस्कृति
पर अध्ययन करने के लिए भस्म जाने जाते हैं। इस तरह से हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है। इसमें हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन, राइटर ए एल भस्म के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सभी को कवर कर लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। चैनल पर हिंदी फाउंडेशन के कुछ वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने मातृभूमि और शतरंज के खिलाड़ी इन चैप्टर्स को कवर कर लिया है। बाकी चैप्टर्स को मैं अभी कवर करूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए और पीडीएफ या नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर अन्य फाउंडेशन कोर्सेज आपको प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।